یہ ذہن میں آپ اپنے رکھیں کہ ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئے یہ بھول جائیں۔ پاکستان میں بیٹھا آتنک کا سرمایہ پاکستان میں چھپا القاعدہ کا ہمراہ کان مالک پاکستان آتنکی کرایہ دار جڑا پاکستان آتنکی سلطان پاکستان میں پنپ رہا انسانیت کا گنہگار میں چھپا ایک اور پاکستان کے دامن پر آتنک کے آقاؤں کو اپنی سرزمین پر پناہ دینے کے اتنے داغ لگ چکے ہیں کہ اب اسے یہ داغ بھی پسند آنے لگے۔ کمال دیکھیے، پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ایک طرف حافظ طریقے آتنک کے آقا پر بین لگانے کی بات کا ڈھونگ کر رہے ہیں اور دوسری طرف وہ بھارت سے جنگ کی بات کرتے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب اپنے گرہبان میں جھانکنا بھول جاتے ہیں۔ اگر جھانک کر دیکھیں گے تو انہیں دکھے گا کہ پاکستان کی سینا کی بدولت پاکستان کی سرزمین پر نہ جانے کتنے اور حافظوں کا کنبہ تیار ہو چکا ہے۔ نمسکار، میں ہوں دگ وجے سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں سازن۔ اسلام آباد پاکستان کی راجدھانی، اسلام آباد یعنی اسلام کا شہر، اسلام آباد پاکستان کا 9واں سب سے بڑا شہر، اور اسی اسلام آباد شہر کی مسجد روڈ پر موجود ہے اسلام آباد کی سب سے پرانی مسجدوں میں سے ایک لال مسجد، اور اسی لال مسجد سے جڑی ایک اور عمارت ہے جسے اسلام آباد میں لوگ جامعہ حفصہ کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ عمارت پتہ ہے ہندوستان کے ایک اور دشمن کا، مولانا عبدالرشید غازی، بھارت کا دشمن مولانا عبدالرشید غازی اسامہ بن لادن کا دوست، مولانا عبدالرشید غازی پاکستان کا بالا، اس کی آستین کا سانپ، مولانا عبدالرشید غازی پاکستان میں آتنکیوں کا سب سے بڑا حمایتی۔ بھارت سرکار نے کشمیر سے دھارا 370 کیا ہٹائی؟ پاکستان کے حکمرانوں کے ساتھ ساتھ اس کے پالے ہوئے آتنک کے آقاؤں کو بھی مرچی لگ گئی۔ کچھ اس قدر کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ساتھ پاکستان میں آتنکیوں کا سب سے بڑا حمایتی مولانا عبدالعزیز غازی بھی بھارت کے خلاف جہاد کی بات کرنے لگا ہے۔ ایک امریکی اخبار دی ٹائمز میں چھپی خبر کے مطابق مولانا عبدالعزیز غازی نے اسلامک آتنکوادیوں سے کشمیر میں موجود بھارتی سرکشا بلوں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے کہا ہے۔ میں کہتا ہوں کشمیر کے اندر آپ لوگ کہتے تھے شہرگ ہے، شہرگ 8-9 مہینوں سے 8 مہینوں سے کرفیو کے اندر ہے، اس لیے میرا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر سرحدیں کھولی جائیں۔ اگر حکومت نہیں کر سکتی نہ کرے، مجاہدین کو کہا جائے پہنچو، مسلم امہ کو کہا جائے پہنچو۔ فوری طور پر میرا مطالبہ ہے، آپ مطالبے کی تائید کرتے ہیں؟ اتنا ہی نہیں، عبدالعزیز نے پاکستان کے پردھان منتری عمران خان سے بھی گزارش کی ہے کہ وہ پاکستان کی جیلوں میں بند اسلامک آتنکوادیوں کو رہا کر دیں اور پاکستان کی سرحد پر بھیج دیں تاکہ یہ آتنکی بھارتی سینا پر حملہ کر سکیں۔ دراصل مولانا عبدالعزیز غازی پاکستان کا پالا ہوا وہ آستین کا سانپ ہے جو اپنے فائدے کے لیے کبھی بھی پاکستان کو ہی ڈس سکتا ہے۔ سے عبدالعزیز غازی نے ایک جہاد کی بات کہی ہے، اور ایک عبدالعزیز غازی ایک اس طرح کا کلیرک ہے کہ جس نے کہ پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف ہی اس نے مورچہ کھول دیا تھا 2007 میں جو لال مسجد کی جو سیج کرتے سمے، اور ابھی بھی وہ پاکستان کے جو پوری جو اسٹیٹ اسٹرکچر ہے اس کو وہ اسلامک ریجیم میں چینج کرنا چاہتا ہے، وہ شریعہ لا لاگو کرنا چاہتا ہے۔ مولانا محمد عبدالعزیز غازی، عمر 59 سال، مولانا جامعہ حفصہ مدرسہ اسلام آباد۔ مولانا محمد عبدالعزیز وہ شخص ہے جو پاکستان کی راجدھانی اسلام آباد میں رہتا ہے اور وہاں کی سرکار اور حکمرانوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کھلے عام ان کو دھمکی دیتا ہے۔ پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاد اور شریعہ تعمیل کرنے کی بات کرتا ہے، لیکن کمال دیکھیے کہ پاکستان کی سرکار کی دیمک لگ چکی کھوکھلی سرکاری مشینری اور اس کے کارندوں میں اتنی بھی ہمت نہیں کہ وہ اس شخص کو گرفتار کر سکے۔ آج کی تاریخ میں بھی مولانا محمد عبدالعزیز کو پاکستان میں سب سے خطرناک اور رسوخ دار شخص مانا جاتا ہے۔ اس کا اندازہ آپ کو اس بات سے لگ جائے گا کہ مولانا عبدالعزیز پر ہاتھ ڈالتے وقت پاکستان کی سرکار اور سینا بھی ڈرتی ہے۔ یہ پرو طالبانی ایلیمنٹ ہے، جو پرو طالبانی کلیرک ہے،
जिसने कि पेशावर में जो बच्चों की हत्याएं कराई थी पाकिस्तान तालिबान ने, उसका तक का समर्थन किया था। तो ये एक बहुत ही दुर्दांत प्रो तालिबानी एक कट्टर इस्लामिक क्लेरिक है, जिसको कि अब पाकिस्तान की एजेंसीज मोहरा बना करके और भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना चाह रही हैं। तो ये पाकिस्तान की आत्मघाती मानसिकता को दर्शाता है, ये पाकिस्तान की बौखलाहट को दर्शाता है, पाकिस्तान के डर को दर्शाता है। और जिस तरीके से पाकिस्तान के जो प्रमुख आतंकवादी संगठन जैश-ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तोयबा के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर बना हुआ है, उस प्रेशर से बचने के लिए अब पाकिस्तान नए नए मोहरों को तलाश रहा है, जिसमें कि अब्दुल अजीज गाजी भी है, जिसमें सैयद सलाउद्दीन भी है। तो इस तरह के जो नए आतंकवादी संगठनों की तलाश करके पाकिस्तान उनको भारत के खिलाफ तैयार करना चाह रहा है। मौलाना मोहम्मद अब्दुल अजीज पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अपने जामिया हफ्सा मदरसे में बच्चों को जिहाद की तालीम और तकरीरों का पाठ पढ़ाता है और फिलहाल उसे रोकने वाला कोई नहीं है। जिहाद क्या है? जिहाद अल्लाह की रहमत है, जिहाद रब का हुक्म है, जिहाद नबी का रास्ता है, जिहाद इस्लाम की ढाल है, जिहाद सहाबा का मिशन है, जिहाद जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है, जिहाद कुफार को मौत का पैगाम है। आपको बता दें कि अब्दुल अजीज के मदरसे में 2000 लड़के और 1500 लड़कियां तालीम ले रही हैं। मौलाना अब्दुल अजीज ये बात बार बार कहता है कि उसका मकसद पूरी दुनिया पर शरिया कानून लागू करना है और अगले 10 साल में ये बदलाव पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा। अब्दुल अजीज का कहना है कि पाकिस्तान में शरिया लागू करने के लिए अगर उसे पाकिस्तान की सरकार का तख्ता पलट भी करना पड़े तो वो अपने शागिर्दों के साथ सरकार के साथ जंग के लिए तैयार है। ये जो ऐसा क्लेरिक है जो पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ ही उसने विद्रोह कर दिया था और बाद में उसने पाकिस्तान सरकार के साथ समझौता कर लिया और अब वो सारे जो जितने भी उसके पास चार्जेस लगे हुए थे, लगभग 27 चार्जेस इसके ऊपर लगाए गए थे, उस सब से वो मुक्त हो चुका है। तो ऐसे में ये ऐसा क्लेरिक है कि जो कि तालिबान की मानसिकता रखता है, जो कि भारत विरोधी मानसिकता रखता है और एक ऐसे समय में कि जब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन फिर से लौटने की संभावना पूरी दिख रही है, ऐसे में अब पाकिस्तान की सरकार इस तरह के जो क्लेरिक्स हैं जो कि प्रो तालिबानी मानसिकता है उनको प्रमोट करने की कोशिश कर रही हैं और उनको भारत विरोधी एजेंडे में लगाने की कोशिश कर रही हैं। अब्दुल अजीज गाजी का महत्व आगे आने वाले समय में और बढ़ सकता है जब तालिबान की वापसी अफगानिस्तान में हो जाएगी। पूरी दुनिया अब्दुल अजीज को अमेरिका से नफरत करने वाले और दुनिया भर के इस्लामिक आतंकी संगठनों को समर्थन देने वाले शख्स के तौर पर जानती है। इतना ही नहीं, साल 2014 में उसने अपने मदरसे की लाइब्रेरी का नाम शहीद ओसामा बिन लादेन लाइब्रेरी रख दिया था। ओसामा बिन लादेन के मेरे वालिद से अच्छे संबंध थे। हम अमेरिका की ओसामा को आतंकवादी मानने वाली दलील को नहीं मानते हैं। ओसामा ने दुनिया में शरिया लागू करने के लिए जिहाद किया था, इसलिए वो हमारे लिए एक इस्लामिक योद्धा है। हमने अपनी लाइब्रेरी का नाम ओसामा के नाम पे रखने का दुस्साहस किया है। मौलाना अब्दुल अजीज वो शख्स है जो पाकिस्तान में खुलेआम आतंकी संगठनों को समर्थन देने की बात करता है। आपको यहाँ ये बताना जरूरी है कि ये वही मौलाना अब्दुल अजीज है जिसकी वजह से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में कत्लो-गारत मच गई थी। साल 2007 में पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया इस्लामाबाद में मौलाना अब्दुल अजीज की वजह से एक खूनी मंजर को देखकर दहल गई थी। ये वो वाकया था जिसे याद कर आज भी पाकिस्तान के लोग कांप उठते हैं। दरअसल ये वाकया था ही इतना खौफनाक कि कुछ वक्त के लिए पाकिस्तान के तत्कालीन सदर जनरल परवेज मुशर्रफ की भी बोलती बंद हो गई। आलम यह था कि एक मौलाना की जिद की वजह से पाकिस्तान की राजधानी में कत्लेआम मच गया था। ये मौलाना मोहम्मद अब्दुल अजीज की वो तकरीर थी जिसके बाद पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद दहशत और कत्लो-गारत का वो मंजर देखा था कि जिसे देखने के बाद हर कोई दहल गया। लाल मस्जिद या जामिया हफ्सा के इंतहा पसंद कौन से इस्लाम की अक्कासी कर रहे थे? छोटे बच्चे और बच्चियों को लेकर इस्लाम की तालीम के धोखे में दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की तरफ डाल रहे थे। मस्जिद और मदरसे को एक जंग की तैयारी के लिए ये थी वो हकीकत
जिसने शायद पहली बार पाकिस्तान के मुंह पर चढ़ा झूठ का नकाब उतारा था और पाकिस्तान के तत्कालीन सदर को मीडिया के सामने आकर ये सच मानना पड़ा था कि पाकिस्तान के मदरसों के अंदर बच्चों को इस्लाम के नाम पर जिहाद और दहशत गर्दी का पाठ पढ़ाया जा रहा था। मस्जिद इस्लामाबाद की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक और मोहम्मद अब्दुल अजीज साल 2007 में लाल मस्जिद के उलेमा थे। वो लाल मस्जिद से ही जामिया हफ्सा नाम की एक तंजीम भी चला रहे थे। उस वक्त ही उनके मदरसे में करीब 5000 औरतें, मर्द और बच्चे और बच्चियां थी। लेकिन मौलाना अब्दुल अजीज पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करना चाहते थे, लिहाजा अपनी तकरीरों की वजह से वो आतंकी संगठनों के पसंदीदा शख्स बन गए और दहशतगर्दों के साथ उनके रिश्ते बनते चले गए। लेकिन 3 जुलाई 2007 तक ये कोई नहीं जानता था कि मौलाना अब्दुल अजीज के दिलो दिमाग में जो साजिश पनप रही है उसका अंजाम पाकिस्तान को एक दर्दनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगा। चूंकि मौलाना अब्दुल अजीज शुरुआत से ही पाकिस्तान में शरिया बहाल करने की बात कर रहे थे, लिहाजा उन्होंने अपने आतंकवादी दोस्तों के साथ मिलकर पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी। तो वही तकरीबन 5000 लोग, औरतें और मर्द इन 2 इदारों में अंदर थे। औरतों का डंडा ब्रिगेड बनाया हुआ था और मर्द हथियारों से लैस थे। गवर्नमेंट की इमारतों को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, जलाया जा रहा था और यहां तक कि जब पाकिस्तान का झंडा जल रहा था ऊपर, फायर ब्रिगेड जब आई उनको आने नहीं दिया जा रहा था और एक रेंजर के सिपाही को जहां बहक किया गया। और सबसे ज्यादा बदतरीन मिसाल हमारे चाइनीज दोस्त थे। 7 चाइनीज को अगवा करके यरगमाल बनाया गया। 3 जुलाई 2007 को पाकिस्तान की सेना ने मस्जिद के चारों तरफ मोर्चाबंदी करनी शुरू कर दी तो अंदर से मौलाना अब्दुल अजीज के शागिर्द हाथों में डंडे लिए सड़क पर उतर आए। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पाकिस्तान की सेना ने आंसू गैस के गोले छोड़े और इसी दौरान फायरिंग शुरू हो गई। पहले दिन की लड़ाई में पाकिस्तान सेना के एक रेंजर समेत 12 लोग मारे गए थे और 100 के करीब जख्मी हुए थे। इस बीच मस्जिद के अंदर छिपे आतंकियों ने लाल मस्जिद के आसपास की सरकारी इमारतों पर कब्जा करने के बाद उनमें आग लगा दी। पाकिस्तान सेना और मौलाना अब्दुल अजीज के समर्थक आतंकियों के बीच फायरिंग जारी रही। लड़ाई 5वें दिन तक जा पहुंची थी और लाल मस्जिद के अंदर घुसे आतंकियों ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया था। इस लड़ाई के दौरान मौलाना अब्दुल अजीज का छोटा भाई अब्दुल राशिद और उसकी मां दूसरे आतंकियों के साथ मारे जा चुके थे। इस बीच सेना के कमांडोज मस्जिद के अंदर घुसने में कामयाब हो गए। 11 जुलाई 2007 को पाकिस्तानी सेना ने लाल मस्जिद में छिपे तमाम आतंकवादियों को मार गिराया था। ऑपरेशन के बाद पाकिस्तानी सेना ने दावा किया था कि उनके ऑपरेशन के दौरान 102 लोग मारे गए, जिनमें 91 आतंकवादी और सेना के 11 सिपाही थे। लेकिन मस्जिद में बंधक बनाए गए चश्मदीदों के मुताबिक वहां तकरीबन 1000 लोग मारे गए थे, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। 2001 से इसके ऊपर केसेस लगने शुरू हुए थे और 2007 तक आते आते इसके ऊपर 27 केसेस चल रहे थे और लाल मस्जिद के समय में तो इसके केसेस की संख्या काफी बढ़ी और ये 27 तक पहुंची। तो इस तरीके से देखें तो परवेज मुशर्रफ की जो सरकार थी उसको अब्दुल अजीज गाजी ने उखाड़ फेंकने की कोशिश की थी और परवेज मुशर्रफ ने एक ऑपरेशन करते हुए अब्दुल अजीज गाजी और उसके भाई के ऊपर एक बड़ा ऑपरेशन किया और पूरी सीज को खत्म कराया, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। जब ये 2007 में लाल मस्जिद में हुआ, उस समय मुशर्रफ प्रेसिडेंट थे और मुशर्रफ को मारने के लिए 2-3 बड़ी साजिश हुई और इस मदरसे के अंदर जो है वो वास्तव में गवर्नमेंट की सैंक्टिटी और अथॉरिटी को चैलेंज करना शुरू हो गए थे। तो इसलिए उनके ऊपर हमला करके वहां बहुत बड़े पैमाने पर कत्लेआम हुआ। पाकिस्तान सरकार ने इस पूरी साजिश के पीछे अल-कायदा का हाथ होने का दावा किया था, लेकिन जब साल 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में अल-कायदा का सरगना उसामा बिन लादेन मारा गया था तो पाकिस्तान का ये झूठ बेनकाब हो गया था।
हालांकि लाल मस्जिद वाकये के बाद कुछ वक्त तक मौलाना अब्दुल अजीज जेल में रहा, लेकिन साल 2009 में उसे जेल से रिहा भी कर दिया गया और साल 2013 में वो तमाम इल्जामों से बरी भी हो गया। आज मौलाना अब्दुल अजीज के लाल मस्जिद में जाने पर पाबंदी है, लेकिन फिर भी वो अपना जामिया हफ्जा मदरसा आराम से चला रहा है। कमाल देखिए, लाल मस्जिद जैसे बड़े हादसे के बाद भी मौलाना अब्दुल अजीज आराम से पाकिस्तान में खुला घूम रहा है और जब चाहे पाकिस्तान सरकार को धमकी दे देता है। पाकिस्तान अपनी सरजमी पर आतंक के आकाओं को पनाह देता है, ये बात पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान अपनी सरजमी पर आतंकवादी बनाने के लिए ट्रेनिंग कैंप्स खोलकर बैठा हुआ है, ये बात भी पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान की उजड़ी सियासत में अब आतंक की सुल्तान बन चुके हैं, ये बात भी किसी से छिपी नहीं है।